Good morning to all of you. This is your maths class for today. Now we are going to start question number 4. Find the products. आपको इनकी products find करनी है. एक मोनोमियल की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, पोलिनोमियल या फिर ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, जो भी है. ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स पोलिनोमियल्स. ओके, सो व्हाट टू डू? Firstly, we have to multiply 5x in all the terms in whole bracket. Okay, so 5x की मल्टीप्लाई आपको इसकी तीनों टर्म में करनी है. 2x स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म इज 3x, so 5x into 3x, and third term is 2, so 5x into 2. ओके स्टूडेंट, दैट मीन्स इस 5x की टर्म फर्स्ट टर्म में भी, इसकी मल्टीप्लाई सेकेंड में भी, एंड इसी की मल्टीप्लाई थर्ड टर्म में भी. ओके, सो नाउ वी मल्टीप्लाई द न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, सो 5 to the 10 and x, that is 1 and that is 2, so 1 plus 2, that will be 3, and 5 3s are 15 and that is 1 and 1, that will be 2, and 5 2s are 10 and x as it is, so that is your answer. Okay, next is minus 1 upon 5 ab, and which is multiplied by this polynomial. Okay, so here minus 1 upon 5 ab multiplied by a square, and minus here minus minus, that will be plus. Okay, आप ध्यान रखिएगा जब भी आप टर्म्स की मल्टीप्लाई करें तो उनके साइन की भी मल्टीप्लाई होती है. ओके, so minus minus, that will be plus, and 1 upon 5 ab into 10 ab, and minus plus minus, so 1 upon 5 ab into 5b square. Okay, so 1 upon 5, that will be as it is because there is no numerical number in this. Okay, so here a, that is 1, that is 2, so 1 plus 2, that will be 3, and b raised to the power 1 only. Okay, so plus 5 to the 10, so we have 2, and a1 and a1, that will be a2, and b raised to the 1, b raised to the 2, that will be 2. Okay, got it? 5 cancel by 5, so here a is 1 and b is 1 and 2, that will be 3. Okay, so that is your answer. Got it students? Okay, so next is p cube multiplied with the polynomial. How? P cube multiplied by in first term p square. आपको पता है कि टर्म कैसे डिफाइन होती है, प्लस और माइनस से. अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ये पहले ही टर्म्स लिख लिया करें. सो ये आपके पास 4 टर्म्स है. ओके, सो ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी. अब सेकेंड टर्म क्या होगी? पी क्यूब की मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में. ओके, सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई की. नेक्स्ट थर्ड टर्म, सो पी क्यूब की मल्टीप्लाई किस में होगी? थर्ड टर्म में. एंड इस पी क्यूब की मल्टीप्लाई किस में होगी? इस फोर्थ टर्म में. ओके, सो पी raised to the 3 and raised to the power 2, so 3 plus 2, that will be 5, and 2, that will be as it is, and p 3 and 2, that will be 5, and q as it is. Okay, so p 3 as it is and q2 as it is. Okay, now 3 as it is and p 3, and then 1 4 and q2. Okay, so that is your answer. Okay, next is D part. 3 upon 4 mn multiplied by this one. Okay, so माइनस की टर्म है तो माइनस ही रहेगी. So m raised to the power 5, and here plus minus, that will be minus 3 upon 4 mn into 8 n cube. Okay, so minus 3 upon 4 m raised to the power 1, and that is 5, so 1 plus 5, that will be 6, and n will be as it is. Okay, minus 4 to the 8 and 3 to the 6, so m raised to the power 1 as it is, and n raised to the power 1 here and 3 over here, so 1 plus 3, that will be 4, so that is your answer. Okay student, so now question number 4 has completed.
So now the next question is question number 5. Yes, use the column method to find the product. आपको इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है कॉलम मेथड से. अगर कॉलम मेथड से लिखा है क्वेश्चन में तो आपको कॉलम मेथड से ही करनी होगी. अगर आपके पास यहाँ कुछ भी ना लिखा होता, डायरेक्ट लिखा होता है फाइंड द प्रोडक्ट, तो आप रो मेथड से भी प्रोडक्ट कर सकते थे. ओके, एंड एज वी नो दैट वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन कॉलम. हाउ वी कैन मल्टीप्लाई टू पोलिनोमियल इन सेम मैनर. ओके, दैट मीन्स जैसे हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम मेथड से, सिंपली नंबर्स की मल्टीप्लाई करती है, हम इसी टाइप से करनी है बट लेफ़्ट टू राइट. जो हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम मेथड में, जैसे 12 की 15 में, सो हम क्या करते हैं राइट टू लेफ़्ट, बट इसमें हमें क्या करना होता है लेफ़्ट टू राइट. गॉट इट? सो हेयर 3m प्लस 5n एंड 2m प्लस 3n. ओके, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम मेथड से. कॉलम मेथड से कर रहे हैं इसलिए हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को क्या लिखा नेक्स्ट लाइन में. ओके, दैट मीन्स कॉलम टाइप में. सो फर्स्टली व्हाट टू डू, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में इससे मल्टीप्लाई करनी है जो पहले लिखा है, लेफ़्ट से करनी है ना. सो हमें किससे करनी है मल्टीप्लाई बाय 2m. ओके, सो हम 2m से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी इसमें एक्सप्रेशन में. सो 2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 2 6 एंड m की m में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, एंड प्लस फिर इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 एंड m n. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, अब नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है 3n से मल्टीप्लाई करनी है इसमें. सो हमने नेक्स्ट लाइन में किया मल्टीप्लाई बाय 3n. ओके, अब 3n की मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 3 9 mn. सो अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म है जो उसके नीचे लिखे जाए, क्योंकि लाइक टर्म्स का हम एक साथ लिखते हैं. सो 3 3 9 mn. सो ये इस टर्म के नीचे आएगा, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है. और n 3n एंड 5n दैट विल बी 15n स्क्वायर. सो यहाँ पर इसकी कोई लाइक टर्म नहीं थी, हमने इसे साइड में लिखा. ओके, नाउ व्हाट टू डू, ऐड कर देना है. अब मैंने कैसे वर्टिकली ऐड करेंगे हम, ऐड द टर्म्स वर्टिकली. ओके, सो 6m स्क्वायर एज इट इज़ एंड 10 प्लस 9 दैट विल बी 19 mn. हमने इसीलिए इसके नीचे लिखा था क्योंकि ये लाइक टर्म्स थी. हम लिख तो यहाँ भी सकते हैं, फिर पर्सनली ऐड कर सकते हैं इन्हें. ओके, एंड 15n स्क्वायर. ओके, that is your answer. Okay students, got it? Now the next part is a square minus b square and a square plus b square. Okay, we can do same thing. Yes, we find the product, use column method. So a square minus b square and a square plus b square. Okay, so हमें क्या करना है, पहले इस a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करनी है. ओके, मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर. अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करते तो कैसे करते, हम यहाँ से करते राइट से. हम पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई, फिर इसकी इसमें. बट अब हमें क्या करना है, डिफरेंट मेथड है, लेफ़्ट टू राइट करना है. सो पहले हम इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें. गॉट इट स्टूडेंट्स? ओके, सो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई अब हम इसमें करेंगे. ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई अगर मैं ए स्क्वायर में करूँ तो क्या हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा ना. 2 + 2 दैट विल बी 4. ओके, एंड माइनस विल बी एज इट इज़ एंड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इन्हें ऐसे ही लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट लाइन में हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट टर्म से. अगर यहाँ पर और भी टर्म होती तो हम उससे मल्टीप्लाई करते. ओके, सो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई की मैंने ए स्क्वायर की. सो वो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लाइक टर्म्स है. सो हमने इन्हें इसके नीचे लिखी. एंड बी रेज टू द पावर 2 एंड बी रेज टू द पावर 2 दैट विल बी बी रेज टू द पावर 4. ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन डू add the terms
वर्टिकली, अब वर्टिकली ऐड कर दीजिए इन्हें, a raised to the power 4 एज इट इज़। एंड आप देख लीजिए ये माइनस एंड ये प्लस है, सो क्या हो गया बताइए, ये ऐड हो गया, मीन्स 0 एंड माइनस b raised to the power 4। ओके स्टूडेंट्स, so that is your answer. Okay, got it? Okay, so that's all for today, and rest part you will do yourself. Okay, and but still if you have any doubt in any questions, you can contact or message to me. Okay students, thank you.